Hello. Okay, ma'am, your session is live, so you can start your session. Okay, I can start now. All right, all right. So I was waiting for this only. So I welcome you all, super moms, today in this session, which is related to COVID, which is the greatest pandemic going around. So I think मैं थोड़ा session जो है English, Hindi दोनों combined रखूंगी, so that even if you do not understand any medical terms, you all can definitely ask me at the same time. ओके सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कोविड को लेके। पहले मैं खुद के लिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अनामिका जलंधरा एंड आई एम अ चीफ होम्योपैथिक कंसल्टेंट एट रूट क्योर होम्योपैथी इन जयपुर। Basically I belong from Bombay. I've passed out from Mumbai and currently I'm practicing since last 7 years at Jaipur right now. So the related to session, I'll be presenting a presentation also that'll be easy for you all, and I would love to answer your queries. So आपको कुछ भी question होगा related to this session, related to COVID, related to anything that you think is important for you or your family, आप उसी टाइम मुझे इंटरप्ट करके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं and I would be answering to each of them. So I'll just start up with my presentation here. I hope everybody is live and maximum people, whoever wanted to join, have joined us. Yes, ma'am, because it's live also. So Okay. people are there on the Facebook as well. Sure, sure, sure. Okay. Okay, so I'm sharing my screen to you all. I hope it's visible. Yes, Yeah, ma'am, okay. it's visible. Yeah, okay. So the image what you are showing, you've been seeing here is Root Cure Homeopathy, which is the name of our center, which is the name of our clinic, which is a homeopathic clinic in Jaipur. And this is a little introduction about me. Okay, I am Dr. Anamika Jalandhara. I hold a degree in homeopathy, which is BHMS, from Asia's top college, which is CMP in Mumbai. I also hold a diploma in obesity management by diet and nutrition. So I think जिसको भी weight loss का issue हो या even if you wanted any medical help from my end, you all can definitely contact me for that. And I also hold a certificate in obstetric and gynecology. So specifically related to female problems, I've been handling many patients with specifically PCOD, with fibroid issue, with menopausal issue, with hormonal issues. So we have many cases regarding that. And I'm practicing since last 7 years, which is what I told just a little earlier now. And currently I'm practicing at Root Cure Homeopathy in Jaipur. All right, so coming to the topic is myths and facts about COVID-19 and all you need to know about COVID-19 in and out. मैं थोड़ा सा इनपुट चाहूंगी आप लोग का भी, like what do you all know about this COVID-19? Whatever knowledge that you have, you all can definitely tell me one by one or so. Like क्या आपको लगता है कि basically let us start with the roots, basics से हम शुरू करते हैं ताकि हम समझ पाएं actually what is the pandemic going around and what are the problem causing to the people. So let us understand this first. तो मैं वायरस के बारे में जानना चाह रही हूँ, आप लोग की नॉलेज में आपको क्या लगता है क्या है ये वायरस? Anybody can answer here. मैम ये ऐसा वायरस है जिससे कि हमें फीवर होता है, ड्राई कफ के लिए है, और मैम सबसे बड़ी बात है कि इससे हम जो
भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मैम। ऑक्सीजन जी जैसे कि हम लोगों को नहीं मिल पा रही प्रॉपर, हमारे लंग पे इफेक्ट कर रहा है। जी, यस, परफेक्टली राइट। जैसे मैं अगर बेसिक से बात करूं तो ये वायरस जो है ये कोई नया वायरस नहीं है। अगर हम डॉक्टर्स बात करें इसके ऊपर तो ये बेसिकली एक फैमिली ऑफ वायरस है, जो कि कोरोना वायरस फैमिली करके एक वायरसेस आते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो कि हमारे लंग्स को नाक से लेके लंग्स तक का डैमेज क्रिएट करता है। अब हुआ ये कि ये पहले भी 2002 में भी पता था कि ऐसा कुछ वायरस है, पर उसका स्ट्रेन दूसरा था, तो उसे नाम कुछ और दिया गया था, जिसे सार्स कोविड कहा गया था। फिर 2012 में फिर इसकी एक स्ट्रेन आई जो सऊदी अरेबिया में आई, और उस टाइम पे भी ये ऐसा ही हुआ था। डेडली पैंडेमिक नहीं था, बट उसी देश में ही, उसी कंट्री में ही रह गया था। उसे मर्स कहा गया। एंड नाउ इट हैज कम इन 2019 which is again a new strain of coronavirus, which is basically coronavirus disease 2019। इसका नाम जो है वो ऐसा है। चलो ठीक है, बेसिक्स हमें सबको पता है, लास्ट ईयर से हम सुन रहे हैं वायरस के बारे में। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये फैलता कैसे है, तो जैसा मैंने बोला ये रेस्पिरेटरी वायरस है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो पहले शुरू भी ये होता है नाक से। नोज एंड माउथ इज द मेन वे ऑफ एंट्री, वेरिन जहां से ये एंटर करेगा और धीरे धीरे अपने लंग्स का डैमेज क्रिएट करता जाएगा, और एंड में जाके लंग्स में निमोनिया क्रिएट करेगा, जो कि कॉम्प्लिकेशन है कोविड का। सो ये बेसिकली इसका काम है कोविड-19 का। जो मैं चीज बोल रही हूँ, व्हाट इज कोविड-19? सो बेसिकली दिस वायरस, the virus which is affecting the respiratory system and leading to pneumonia। तो ये वायरस का काम ही यही हो रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक 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 करके डैमेज करता जाए, अफेक्ट करता जाए, और फिर अल्टीमेटली निमोनिया, और निमोनिया जब कॉम्प्लिकेट हो गया तो वो डेथ में रिजल्ट करता है। सो दिस इज व्हाट इज कोविड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये तो मैंने वायरस की बात बोली, तो वायरस तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब तक हमेशा जब भी सीजन चेंज होता था, या हमेशा जब भी कुछ समझो वेदर में कोई चेंजेस आ गए, क्लाइमेटिक कुछ चेंजेस आ गए, एंड फीवर चढ़ गया, तो कॉमन वर्ड्स जो हम घर में यूज करते हैं वो है वायरल चढ़ गया हमें, या वायरल बुखार आ गया। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि वायरल फीवर क्या होता है और कोविड क्या होता है? एनीबडी कैन हेल्प मी विद दिस? कोई मुझे बता सकेगा कि वायरल को और कोविड को अंतर कैसे हम देखें? एनीबडी कैन टेल मी इसके बारे में? मेडिकल कोई भी चीज जो आपकी आइडिया की, जरूरी नहीं है हम सब राइट है, हम कोई स्कूल में नहीं है, हम कोई क्वेश्चन आंसर कोई एग्जाम नहीं देना, बट इट इज जस्ट इंटरएक्टिव सेशन, सो दैट मैं जितना मेडिकल नॉलेज हो सकता है उतना मैं आपसे शेयर कर सकूं। मैम जी नमस्ते। मैम नमस्ते। मैम वायरल फीवर जो होता है जनरली 2 से 5 दिन ठीक हो जाता है, और जी आगे में इन्फेक्शन उसका ज्यादा नहीं होता ही नहीं लंग्स में। बट ये जी कोविड वाला जो होता है आगे बढ़ जाता है, जैसा मैं जी, जानती हूँ। परफेक्टली राइट, यू आर परफेक्टली राइट। क्योंकि जैसे कि कोरोना वायरस डिजीज, मैंने इसीलिए पहले कोविड के बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझा कि ये वायरस है क्या, कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रहा है। और जो वायरल डिजीज, जिससे हम नॉर्मल वायरस, जैसे जब भी सीजन चेंज होता है और हमें जुकाम खांसी बुखार जो भी चेंजेस आते हैं, होता क्या है, ये एक दूसरे फैमिली ऑफ वायरस होता है जिसे हम राइनो वायरस कहते हैं। अब राइनो वायरस मीनिंग एक ही एनिमल होता है जिसे राइनोसोरस कहा जाता है। हमारे नॉर्मल कोई छोटे बच्चे की आप अगर बुक में देखें या वैसे भी देखें, तो एक राइनोसोरस करके एक एनिमल होता है जिसकी नाक काफी बड़ी होती है, ह्यूज होती है, तो उसी के नाम से ये वायरस का नाम रखा गया राइनो वायरस। सो राइनो वायरस मीनिंग ये वायरस जो होगा वो नाक से और गले तक ही मतलब रहेगा, ये आपकी लोअर रेस्पिरेटरी चेस्ट को नहीं अफेक्ट करेगा। सो अगर आपको जुकाम खांसी है, फीवर चढ़ रहा है और ये 3 से 5 दिन में ठीक हो रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ वायरल डिजीज ओनली, मतलब दैट इज जस्ट अ वायरल फीवर एंड इट इज नॉट कोविड। यही चीज अगर फर्स्ट डे ही बढ़ते जा रही है, जुकाम की जगह आपको डायरेक्टली गला इफेक्ट हो रहा है, खांसी डेवलप हो रही है, या फीवर चढ़ रहा है जो कि टूट नहीं रहा है,
तो हो सकता है वायरल फीवर के अलावा ये कोविड हो. So this is the difference between viral disease and COVID-19. Okay, so now I'll come to symptoms क्या है. ये तो मैंने बेसिक्स बताए आपको कि क्या है COVID-19 और वायरल डिजीज को भी हम कैसे डिफरेंशिएट करें. बट अब सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट्स में. जैसे आजकल इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं इस पे, आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है, हमारी गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, सब कुछ है. बट व्हाट डू यू थिंक आर द सिम्टम्स ऑफ COVID-19? मैम इसके लिए तो फीवर है, कफ है जी, वॉमिटिंग भी है, लूज मोशंस हो रहे हैं. ओके. सो सी बेसिकली अगर मैं इसमें भी डिफरेंशिएट करके बताऊं, आज का जैसे ये टॉपिक में भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर्ड करके एडअप किया था इसमें, ताकि हम एक एक चीज सेक्शन वाइज कवर कर सके. सो सिम्टम्स ऑफ दिस COVID-19 इन 2020 विच वाज लास्ट ईयर जो सिम्टम्स आए थे वो थोड़े अलग थे, और अभी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो थोड़े अलग है. और इसी कारण, इसी रीजन के वजह से ये कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, और कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में ये बहुत ज्यादा फैल रहा है. मतलब अगर मेडिकली मैं बताऊं तो लास्ट ईयर जो स्ट्रेन थी कोविड की वो सिंगल स्ट्रैंड सिंपल स्ट्रेन थी, बट अभी की जो रेंज है ये डबल म्यूटेंट है. ये कुछ वर्ड्स है मेडिकल, लेकिन डबल म्यूटेंट मीनिंग उसका रेप्लिकेशन बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए फैल बहुत जल्दी रहा है. और लास्ट ईयर बच्चों में नहीं था, अब ये बच्चों में भी हो रहा है. इनफैक्ट आई हैव अ पेशेंट of a kid which is just 15 days old, मतलब सिर्फ 15 दिन का बच्चा, उसको भी कोविड हो रहा है. तो ये डिफरेंस हो गया है लास्ट ईयर के कोविड में और इस साल के कोविड में. अब मैं बात कर रही थी सिम्टम्स के. तो सिम्टम्स जो 2020 विच वाज लास्ट ईयर के जो सिम्टम्स थे वो थे बुखार, सूखी खांसी, जुकाम होना, बॉडी में पेन होना, एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी थोड़ा लेट स्टेज पे डेवलप हो रहा था. मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में देखा जाए तो हो रहा था, जो कि बुखार आ रहा था, खांसी थी, सूखी खांसी स्पेसिफिकली, खांसी नॉर्मल वाली नहीं, सूखी स्पेसिफिकली, गले में हल्का फुल्का खराश, डिपेंड करता था, किसी को हो रहा था किसी को नहीं, और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जो कि हम ईयर एंड तक पेशेंट्स में देखते गए कि लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आ रहा है और फिर ये चेंज हो रहा है. अब इस साल क्या हो रहा है कि फीवर तो है, खांसी भी है, पर खांसी किसी में सूखी खांसी भी है, किसी में गीली खांसी भी है. मतलब आई गो स्टेप बाय स्टेप हियर. जो न्यू सिम्टम्स व्हिच वाज डेवलप्ड दिस ईयर इज फीवर, सोर थ्रोट. सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश होना. ये लोग यूजुअली क्या करते हैं, मतलब पेशेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, उनको लगता है कि गले में खराश है तो शायद हमने ठंडा पानी पी लिया इसलिए हो गया, शायद हम सर्दी गर्मी टाइप आपने कुछ कर लिया, आइसक्रीम खा ली तो कर लिया. बट ये जो सोर थ्रोट है ये आपके हमेशा जब आप ठंडा पानी या ऐसी कुछ चीजें करते हैं उसमें और इसमें जो डिफरेंस है, जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो ये पॉइंट नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट डे अगर आपको गले में खराश भी हो रही है, हल्का बुखार भी अगर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये कोविड का सिम्टम हो. सो सोर थ्रोट ये सेकंड चीज है जो कि डेवलप हो रही है मैक्सिमम पेशेंट्स में इस साल. बॉडी एक का मतलब ये नहीं जस्ट बॉडी पेन हो रहा है, ये इतना पेन है बॉडी का कि आप अपना डेली का काम नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट नहीं लगा पा रहे, जो डेली आप अब तक इजीली कर रहे थे, और वो चीज अभी हो नहीं पा रही है. सो बॉडी पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन विथ वीकनेस, ड्राउजीनेस, के आप थकान बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं. एट द सेम टाइम हेडेक विथ आई पेन. अब ये भी सिम्टम लास्ट ईयर नहीं था, मतलब सर में दर्द होना और आंखों में पेन होना. आंख का जब भी मूवमेंट भी होता है, मतलब मैं काफी पेशेंट्स ने ऐसे बताया है कि हम जब आंखों का मूवमेंट कुछ कर रहे हैं, हम अगर स्क्रीन भी देख रहे हैं तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होती है. अगेन दिस इज अ सिम्टम ऑफ कोविड. एंड ये जो भी मैं बता रही हूँ ये अर्ली सिम्टम्स ही है, लेट सिम्टम्स तो बाद में आते हैं, जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम या सैचुरेशन ड्रॉप होना, वो लेट स्टेज पे आते हैं. बट अर्ली सिम्टम्स जो है कोविड के वो ये है कि गले में खराश हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, आंखों में पेन विथ हेडेक, यू कैन हैव कंजक्टिवाइटिस, यू कैन हैव. अब कंजक्टिवाइटिस का क्या मतलब,
Anybody can tell me what is conjunctivitis? मैम आंखों में सूजन आ जाती है और Yes. आंख लाल हो जाती है, आंखों का जी। लाल होना। पेन करता है जी, पेन भी Right. होता है। राइट, जो कि हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं आंख आना, जिसे यूजुअली हम कहते हैं, बट बेसिकली रेडनेस इन दी आई विथ इचिंग इन दी आई, आंखों से पानी भी आ सकता है। तो ये भी, अगर कंजक्टिवाइटिस भी आपको हो रहा है तो ये भी कोविड का ही एक सिम्टम है। अगेन खांसी, खांसी इस टाइम जरूरी नहीं है कि वो ड्राई खांसी ही हो। लास्ट ईयर तो वो कंपलसरी जैसे हो गया था कि अगर पेशेंट्स में जिनमें अगर गीली खांसी थी तो हम उन्हें टर्म नहीं करते थे कि आप कोविड हो सकता है या आपको टेस्ट करवाने की जरूरत ही है। बट हियर नाउ गीली खांसी भी हो सकती है तो सूखी खांसी भी हो सकती है। एट द सेम टाइम लूज मोशंस। अब लूज मोशंस एक्चुअली हो क्या रहा है, छोटे बच्चों में ज्यादातर लूज मोशन ज्यादा कंप्लेन्स आ रही है बच्चों में कि जिनके भी एज कम है या यंगस्टर्स हैं उनमें लूज मोशन ज्यादातर हो रहे हैं। अडल्ट्स में भी है बट लूज मोशन के केसेस जो है बच्चों में ज्यादा दिख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वेलिंग इन द फिंगर विद ब्लूनेस, मतलब उंगलियों के जो टिप्स होते हैं अपने, यहाँ पे सूजन सी क्रिएट हो जाती है, थोड़ा ब्लूइश, जैसे कि यहाँ पे सर्कुलेशन ना हो, ऐसा सेंसेशन एक सिम्टम और इसमें आ रहा है। स्किन रैश मीनिंग स्किन पे हल्का सा रेडिश सा पैच बनना, ये भी सिम्टम नए कोविड का इस साल का है। एंड लास्टली ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसे मैंने बताया, निमोनिया जो कि ये डेवलप करता है तो लेट स्टेज पे जाके ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। बट अगेन जैसे मैंने बोला, ये म्यूटेंट जो है ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, मतलब स्ट्रेन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो काफी केसेस ऐसे हैं जिनको कि सेकंड थर्ड डे ऑफ फीवर, मतलब आप जस्ट 2 दिन पहले बीमार पड़े हैं और दूसरे तीसरे दिन ही आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो घबराए नहीं, डरे नहीं किसी भी चीज को लेके, लेकिन आपको जितना जल्दी हो सकता है अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करना है। ये देखना है कि सैचुरेशन क्या रह रहा है। सैचुरेशन का मतलब अगर मैं आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी अगर डिटेल में बताऊं तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जिसमें 2 वैल्यूज दिखाई देती है। एक होता है ऑक्सीजन की, जिसे SpO2 करके कहा जाता है, और एक होता है पल्स रेट की। अब ऑक्सीजन हमारी ब्लड में 100% होता है, परसेंटेज वाइज में ये पता चलेगा आपको, ये 100% होता है। अब नॉर्मल क्या होता है ऑक्सीजन लेवल्स? इफ एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट आर द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स? आपके पास होगा ये इंस्ट्रूमेंट घर पे? जी 95 95 हाँ जी 95 and above. above than 95. Yes. If I tell you, अगर नॉर्मल रेंज माने इसका तो 96 to 100 इसका होता है नॉर्मल रेंज, बट 95 तक ऑल्सो इट इज टॉलरेबल, कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये 95% से कम हो रहा है तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट मीन्स योर लंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड, मतलब लंग्स में निमोनिया सेटल हो रहा है और ये आपका जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है उसको कम करते जा रहा है। अब क्या वैल्यू ये होगा कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करना है या हॉस्पिटल जाना है? तो वैल्यू जो हमारे हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया है, जो रिसर्चर्स ने बताया है, कि अगर ये सैचुरेशन 92 के नीचे जाता है, 92 मतलब 95 तक इज ओके, 95 to 92 इज अलर्ट रेंज, बट अगर 92 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जा रहा है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और आपको एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप की जरूरत है। डजंट रिक्वायर अभी, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स का इशू है तो घर पे भी सेटअप कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज ऑक्सीजन की जरूरत है अगर 92 के नीचे जाता है तो जैसा रेंज मैं बता रही हूँ, नॉर्मल रेंज जो है वो 96 to 100 है, लगभग मानेंगे 95 to 100 which would be the normal range। 95 के नीचे अगर जा रहा है तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर ये 92 के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको फिर ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो मैंने बताया पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप दिस इंस्ट्रूमेंट एट योर होम,
क्योंकि जैसा ये पैंडेमिक चल रहा है, अब लास्ट ईयर हमने इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी ऐसे अवेयरनेस, क्योंकि ये नया वायरस था, ये नई बीमारी थी, पैंडेमिक पहली बार इतना ज्यादा लेवल पे फैला था, तो लोग पैनिक कर रहे थे, एंजाइटी हो रही थी, लोग डर रहे थे। तो हम फिर भी अवेयरनेस ऐसे कर रहे थे कि घबराए नहीं, हो सकता है ये कोविड नहीं, कोई और बीमारी भी हो सकती है, कोई और वायरल डिजीज भी हो सकता है। बट अभी का जो स्टेट है, इंडिया का फिलहाल जो स्टेट है, अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आपके गले में खराश है, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम है जो मैंने अभी बताए नए सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको कोविड हो, अनलेस ये चीज रूल आउट होती है कि कोई और बीमारी हो सकती है। लेकिन 90% ऑफ चांसेस देयर आर इट कैन बी कोविड, सो वी हैव टू स्टे अलर्ट हियर। ऐसा नहीं कि पहले दिन फीवर आया और हम वेट करें कि चलो एक दिन रुक जाते हैं, देखते हैं, कल देखते हैं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करें। बिकॉज अगर ये चीज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपनी हेल्थ को लेके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और खुद को भी नहीं तो अपनी फैमिली के हेल्थ को लेके भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो do not do that, I request you all, do not do that, and please keep this pulse oximeter, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट है, भले किसी को कोविड हो या ना हो, सब लोग हेल्दी हो, बहुत अच्छी बात है, सब हेल्दी ही होने चाहिए, बट यू शुड कीप दिस इंस्ट्रूमेंट एट होम विथ अ थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी ये है कि जब भी हमें फीवर आता है, मेनी पीपल से कि हमें तो हल्का सा बुखार लगा। अब हल्का सा का क्या मतलब होता है? फीवर कैन नॉट बी हल्का, फीवर मीनिंग इज फीवर। What do you think is the temperature? What do you think is the temperature criteria for fever? आप लोगों को क्या लगता है, क्या टेम्परेचर से बढ़ जाएगा वो तो हम उसको फीवर बोलेंगे? प्लीज if you all can tell me. मैम 100 से ऊपर होगा तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो फीवर है। 98.4 से अबव होने पे। No. No, the criteria. टेम्परेचर तो जी प्लीज आप बोलिए। नॉर्मल टेम्परेचर तो 98.4 या 99 ही माना जाता है ना। ओके, सी आई विल जस्ट टेल यू, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 होता है, ठीक है? Okay. ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 98.6 से 99 तक की रेंज आती है तो इसे फीवरिश कहा जाएगा, पर फीवर नहीं कहेंगे। So if your values will range from 98.6 to 99.0, तो ये फीवरिश है, इसको बुखार नहीं बोलेंगे। पर अगर ये 99.1 भी होता है या 99 प्लस होता है तो उसको हम फीवर ही कहेंगे। तो दैट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर फीवर। सो जब भी अगर किसी को भी बुखार जैसा भी लगे या बुखार भी लगे, प्लीज रिकॉर्ड योर टेम्परेचर इन अ प्रॉपर डिजिटल थर्मोमीटर, जिससे कि आपको वैल्यूज एक्यूरेट समझ में आए कि क्या वैल्यू रेंज कर रहा है, और हम उसे जज इजीली कर पाए और ट्रीटमेंट उसका इजी हो जाए। सो अगेन इंफॉर्मेशन जो फीवर को लेके भी यही होगा, थर्मोमीटर आपको घर पे रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर जो कि मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया ये भी आपको घर पे रखना है, जिससे कि हम पहले से ही अलर्ट रह सकें और पहले से ही एक्शन ले सकें। ओके, सो सिम्टम्स, आई एम क्लियर विद सिम्टम्स। आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन जो कि आप पूछना चाहेंगे इसमें? मैम अभी जो मेडिसिन को लेके एक वायरल मैसेज चल रहा है एस्पिडोस्पर्मा को लेके, मैम उसके बारे में थोड़ा गाइड कर देंगे प्लीज? जरूर जरूर जरूर, मैं अभी मिथ्स पे ही आ रही हूँ, जो कि इसमें से एक और मिथ मैंने एस्पिडोस्पर्मा पे भी लिखा है। तो आई जस्ट कम टू द पॉइंट, आई गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी का जो ये मेरा है, पहला मिथ इज वंस इन्फेक्टेड री इन्फेक्शन डज नॉट हैपन। क्या मतलब इसका? कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, चलो मुझे लास्ट ईयर कोविड हुआ था, तो क्या मुझे वापस से ये इन्फेक्शन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ मैम हो सकता है। ओके, डेफिनेटली हो सकता है। तो मिथ यही है, काफी लोगों को ये था पहले जब ये शुरू हुआ था वापस पैंडेमिक इसी मार्च में ही, कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है तो अभी हमें नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द फैक्ट इज री इन्फेक्शन कैन ऑकर, बट ये है कि यूजुअली जिन पेशेंट्स में पहले कोविड हो चुका, सेकेंड टाइम अगर कोविड होता है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, मतलब जो कि निमोनिया, जो कि कोविड का कॉम्प्लिकेशन है, लोअर रेस्पिरेटरी अफेक्शन, तो वो चीज नहीं होती। तो ये एक प्लस पॉइंट जरूर है, बट सेकेंडली इन्फेक्शन जरूर हो सकता है। नेक्स्ट मिथ जो आ रहा है लोगों में
वो है once infected you need to get admitted. मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया या एक बार आप पॉजिटिव आ गए तो एडमिट होने की जरूरत है. व्हाट डू यू थिंक? मैम सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है. राइट ट्रू. सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सबसे पहली चीज, आपको बुखार कितने दिन से है या आपके सिम्टम्स क्या क्या है, आपको सांस लेने में दिक्कत है या नहीं है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने ये पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताया, ऑक्सीजन के बारे में बताया, अगर 92 के नीचे है आपका ऑक्सीजन लेवल तो एडमिट होने की जरूरत है. अदरवाइज एडमिट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. घर पे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है और घर पे भी सारी चीजें कवर अप हो सकती हैं. सो फैक्ट टू दिस वुड बी देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग एडमिटेड. दैट विल डिपेंड ऑन योर सिम्टम्स एंड योर क्राइटेरियाज कि आपके क्या लेवल्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से एडमिट होने की जरूरत है. सो डोंट पैनिक इन केस किसी का भी पॉजिटिव आता है या घर में कुछ ऐसा कुछ होता है तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है. Once vaccinated, reinfection doesn't occur. अब आपकी क्या राय है इसमें कि एक बार वैक्सीन तो हमने लगा दिया, अब तो हमें नहीं होगा? What do you think? नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद भी केसेस हैं और यस मैम, हो वैक्सीन सकता है लगाने पर के इतना बाद रिस्की नहीं होगा. नहीं, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन लगाने के बाद भी when you are not make sure that you are having corona and again you are going for the second vaccination, that is the worst thing which is going on actually. Yes. which I So have heard. हाँ, जैसे ये वैक्सीनेशन के 2 डोजेस है. पहली चीज तो मैं आपको क्लियर बताऊं तो ये जब वैक्सीन फाइंड किया था, आपको पता है ऑलरेडी लास्ट ईयर इतना सब कुछ चला कि वैक्सीन चलो, मतलब वैक्सीन होनी चाहिए, इन्वेंट कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, सब कुछ हो रहा था. बट वैक्सीन जब ये फाइंड आउट हुई थी तो ये जो वैक्सीन थी पुराने वायरस के हिसाब से थी. अगर ये मेडिकल फैक्ट्स बताऊं मैं आपको तो लास्ट ईयर का जो स्ट्रेन था, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि लास्ट ईयर का जो स्ट्रेन था वो फिर भी सिंगल म्यूटेंट था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना स्प्रेड होने वाला नहीं था, उसके हिसाब से ये वैक्सीनेशन है. तो ठीक है, आपने वैक्सीन लगा ली, पुराने इन्फेक्शन से तो आप बच गए. बट नया जो स्ट्रेन है जो कि डबल म्यूटेंट है, ये नया जो अभी रेप्लिकेट कर रहा है, तो आप इससे इम्यून नहीं है. तो एक डोज समझो, आपने एक डोज लगाया है और फिर आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो दैट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग तो होगी ही, बिकॉज पहले के वायरस से आप और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज जो वैक्सीनेशन था वो लास्ट ईयर के स्ट्रेन के हिसाब से था, इस साल के स्ट्रेन के हिसाब से नहीं था. इट वॉज जस्ट अ कोविड इन्फेक्शन ओनली. बट आपको वापस से री इन्फेक्शन हो सकता है अगर वैक्सीनेशन हो गया तो भी. एंड वैक्सीनेशन के बाद में भी जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन हो या ना हो. ये भी लोग कह रहे हैं कि हमारे वैक्सीन लग गए हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. सो दैट विल डिपेंड अगेन ऑन योर मेडिकल हिस्ट्री. अगर आपको डायबिटीज की हिस्ट्री है, आपके बीपी लेवल्स, ब्लड प्रेशर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी कोई किडनी लिवर की कोई बीमारी है, आप रेगुलर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है. अगर ये सब आपको नहीं है और आपने वैक्सीनेशन लिया है और आपको ये बीमारी हुई है तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते. सो अगेन क्राइटेरिया भी इसमें यही होगा कि मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से जो कॉम्प्लिकेशन है वो डिपेंड करेगा. Dr. Anamika, Yeah. as I suffered recently through Yeah. this corona. Okay. Okay. So after second vaccination, just Okay. after that. So Yeah. I think it was not known to me that I am already suffering with the corona, and I took the second dose of medicine, vaccination actually. And But you after had that I felt suffered sick. after the second dose, right? Yeah, just after the second dose. Okay. So that's what I am saying, that it was very risky, and I'm also a sugar patient, so Right. it creates a very tough time for me. Okay. So did you had any complication that time? Yeah, very much complications. I Oh, got as through. hmm. Yeah, so before vaccination, you have to make sure that whether you are having COVID or not. And only the Exactly. vaccination should be done. That I came to know later on. Okay. Because exactly what people are finding it difficult is when you get vaccinated, you feel
कि नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स मुझे फीवर आएगा, और फीवर आता भी है, बट दैट इज बीइंग नेग्लेक्टेड एज द वैक्सीनेशन का फीवर. It is not accepted that it can be a reinfection or it can be another infection also. So many people, many cases are finding that here the point of ruling out whether it is infection or whether it is vaccination ka fever would be your symptoms. Like fever आपको आया, fever आप record करें, वही temperature पे अपना thermometer पे check करें कि what is the temperature ranging, whether in the morning, afternoon, at night. Next thing what you can rule out is the other symptoms, which are the symptoms of COVID, which is a sore throat pain or a body pain, severe body pain, or you have any uneasiness or not. In case 2 दिन में ये symptoms settle down हो जाते हैं तो nothing to worry, but still you need to follow those protocol of COVID, which is like we ask our patient to have a good vitamin C intake. Like vitamin C के कुछ tablets हम provide करते हैं, multivitamins we provide other medicines also in case if you have even sugar present. Right, so you also need to check with your sugar levels also कि अगर sugar levels control है तो complication नहीं होगा, और अगर शुगर लेवल कंट्रोल आपके नहीं है, कंप्लीट ही डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन का चांसेस है. तो हियर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट वेट फॉर 2 more days. 2 days के अलावा भी अगर फीवर आता है या ऐसा भी अगर है, आई हैव लाइक पेशेंट्स हु हैव बीन वैक्सीनेटेड, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, मंडे को वैक्सीनेशन किया था एंड दे आर गेटिंग फीवर ऑन थर्सडे. सो इज इट अ वैक्सीनेशन का फीवर और इज इट अ इन्फेक्शन का फीवर? No, I don't think so. हाँ, the problem is it's an infection, it is not the vaccination fever. वैक्सीनेशन के टाइम जो फीवर आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, आपका सी आवर बॉडी एक्ट्स एज अ वेरी प्रोटेक्टिव स्टेट. मतलब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, हल्का सा समझो डस्ट ही क्यों नहीं आया, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ गई, भी इमीडिएटली टेंड टू रिएक्ट. छींक आके रिएक्शन आएगा, खांसी आके रिएक्शन आएगा. ऐसी जो बेसिकली बोलने का मेरा मीनिंग यही है कि बॉडी का मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि अगर फॉरेन मटेरियल कुछ भी बॉडी में आता है तो इमीडिएटली वी रिएक्ट टू दिस. और वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कुछ एंटीबॉडीज थी कोई दूसरे वायरस को लेके, वो हम इम्प्लांट कर रहे हैं, वो हम दे रहे हैं ताकि बॉडी उससे इम्यून हो जाए. सो योर इम्यूनिटी इज गेटिंग रिएक्टेड एंड साइन ऑफ फीवर इज अ गुड साइन कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है और ये रिएक्ट करके ये सेटल डाउन हो जाएगा. बट ये चीज 24 to 48 आवर्स में ही होनी चाहिए, इससे लेट ये नहीं होगी. सो अगर कोई बुखार वैक्सीनेशन के बाद में 2-3 दिन बाद में आ रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम 48 आवर्स आ रहा है, तो दैट इज एन इन्फेक्शन एंड दैट इज नॉट अ वैक्सीनेशन का फीवर. वो इमीडिएट 24 आवर्स में आ गया तो बहुत ठीक है, उसके बाद अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. बट उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया है एंड यू फील अनईजी, then definitely you need to get yourself tested here. So I think I'm being clear for the vaccination thing, na? Yeah, thank you so much, doctor. Okay. Hello, I'll ma'am. come. हेलो. Yes. Hello. हाँ जी, यदि किसी को पहली वैक्सीन होगी और उसके बीच में 6 से 8 हफ्ते के बीच में दूसरी वैक्सीन होनी थी और उस दौरान उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो हाँ. तब दूसरी डोज कब लगाएगा? सी अब इसमें भी वापस एक रिसर्च आ गया है. अब रिसर्च भी पूरा फुल फ्लेज. मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस मैम. Yes, यस. ma'am. जी जी. अच्छा, प्लीज तो अपने अब आप को इस म्यूट पे कर दीजिए. जिसका क्वेश्चन Sorry? सिर्फ बाकी लोग प्लीज म्यूट पे कर दीजिए अपने आप को. जिसका क्वेश्चन है सिर्फ वही अनम्यूट पे रहिए प्लीज. थैंक Okay. यू. अच्छा, okay. Yes, Okay, ma'am. so as I was talking about जैसे वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज आपने लगाया, अब आप इन्फेक्टेड हो गए, बीच का जो ये टाइम था, आपको जो बीच का ड्यूरेशन दिया था 1 month का या 45 days का, यहाँ पर आप इन्फेक्टेड हो गए, तो सेकेंड डेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? पहली चीज तो हम जो चेस्ट फिजिशियन, इनफैक्ट जो इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है, जो वेल रिसर्च डॉक्टर्स है, हमने जो फाइंडिंग्स देखी है, आई एम ऑल्सो अटैच्ड टू अ रिसर्च टीम which is homeopathic research team, but we do discuss on these topics. So इसमें फैक्ट ये आया है कि जैसा मैंने बोला, लास्ट ईयर का स्ट्रेन था
वो सिंगल म्यूटेंट था, वो लास्ट ईयर के वायरस के हिसाब से वैक्सीनेशन निकाला। अब आपको दूसरा इन्फेक्शन हुआ है जो कि स्ट्रॉन्गर वेरिएंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग है पुराने वायरस से। तो अगर आपको पुराने वायरस के वैक्सीनेशन लगाने के बाद में स्ट्रॉन्ग वायरल इन्फेक्शन, आई मीन यही कोविड-19 हो गया, तो इसी की आपको सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। This is what have come up to the research, which is the latest research, which was discussed last week only. तो ये last week ही ऐसा findings आई है। अभी पब्लिश करना, हम जैसे इसमें न्यूज में डालना, ये सारा चल रहा है प्रोसेस। बट अगेन द फैक्ट वुड बी दिस ओनली, अगर एक डोज हो गया है और आपको इस बार का इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी तो उतनी डबल हो चुकी, पहले का एक इन्फेक्शन का आप पहले की एंटीबॉडीज है ही, और अब नया इन्फेक्शन हो गया तो उसकी भी एंटीबॉडीज आ गई। तो हम पुराने इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज क्यों ले, या पुराने वेरिएंट की एंटीबॉडीज क्यों ले? सो द फैक्ट वुड बी दिस, बट स्टिल अ प्रॉपर फॉर्मेट टू दिस, अ प्रॉपर गवर्नमेंट का ये चीज प्रोटोकॉल में आना अभी बाकी है, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द रिसर्च। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैम ये कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो कितने दिन बाद वैक्सीन लगाए? ओके, हाँ, नहीं, क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी इसी में ही है सेम। जैसे मैंने बोला कि आपको अभी जो इन्फेक्शन हुआ है, अगर सेकेंड इन्फेक्शन हुआ है आपको, जो कि इस साल का अगर इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का, और वैक्सीनेशन जो है वो पुराने वेरिएंट के हिसाब से है, तो फिर वैक्सीनेशन जी मैम वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। अगर मान लो किसी को वैक्सीन नहीं लगी, उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया, उसको आगे वैक्सीन लगवानी है, तो वो कोविड इन्फेक्शन के कितने टाइम बाद वैक्सीन लगवाएगा? वो देखिए, कोविड के इन्फेक्शन जो 14 डेज का, अगर आपका इन्फेक्शन पूरा क्लियर हो जाता है, जैसे 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड हो जाता है, उसके 1 मंथ बाद आप फिर भी लगवा सकते हैं। 1 मंथ बाद? जी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो घर में किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया और घर के दूसरे फैमिली मेंबर को नहीं हुआ है, और उनको एक डोज लग चुकी और दूसरी डोज लगवानी है, तो वो लगवा सकता है? हाँ, बाकी फैमिली मेंबर्स लगवा सकते हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नहीं हुए हैं तो बाकी फैमिली मेंबर्स डेफिनेटली लगवा सकते हैं। टेस्ट नहीं कराया, वैसे कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो लगवा सकते हैं? हाँ हाँ, लगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। जी जी, हेलो डॉक्टर। या हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, हमने दोनों डोज ले ली है, पर हमें दोनों डोज के बाद कोई भी सिम्टम्स नहीं आया, कि कुछ भी नहीं हुआ हमको। ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई सिम्टम नहीं आया तो अच्छी बात है कि कोई सिम्टम नहीं आया, आप परेशान नहीं हुए। बट दैट इज ऑल्सो, ये कोई वो हमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे, सो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, कोई भी टेंशन की इसमें बात नहीं कि हमें वापस सिम्टम क्यों नहीं आया, बुखार क्यों नहीं आया, आना चाहिए था, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। तो जैसा आप कह रहे हो कि बॉडी गई है, बॉडी रिएक्शन आना चाहिए था, गया, तो कोई तो रिएक्शन होना चाहिए। हाँ, भी आ जाती होना है, चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा आपका इम्यूनिटी जरूर कम है, इसीलिए शायद हो सकता है कि कुछ रिएक्शन ना आया हो, बट ठीक है, बॉडी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इम्यूनिटी तो हो सकती है एज के हिसाब से। मेरे हस्बैंड 75 प्लस है और मैं 71 प्लस हूँ, तो ओके ओके, हाँ, तो वो इम्यूनिटी कम है आपकी, इसीलिए वो उतना रिएक्शन नहीं आया जो कि आना चाहिए था। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैक्सीनेशन अगर हो गया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वही सेफ रहना है आपको, क्योंकि रिएक्शन कुछ नहीं आया तो दैट मीन्स इम्यूनिटी कम है, तो सेफ रहना है, वही अच्छा हेल्दी खाओ, अच्छा सारे जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल कम नाउ। यस, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, कोई मॉम लिख रही है, उनका नाम मेंशन नहीं है इसमें। She is asking, ma'am, I did not took vaccination and now infected with new strain. Should I take vaccination? Okay. See, if you are infected with the new strain and if you do not have any diabetes or hypertension or any other health issues, तो आपको vaccination की वैसे जरूरत नहीं है। This is what is my point of view here is, जो कि मैं जो बात कर रही हूँ, रिसर्चेस की बात कर रही हूँ, तो ये जो न्यू रिसर्च जो आ रहा है वो यही कह रहा है
कि इन्फेक्शन एक बार हो गया है तो वापस जरूरत नहीं है. इफ यू स्टिल विलिंग टू टेक दैट, यू कैन अगेन टेक इट इन 1 month ड्यूरेशन. लाइक आपका इन्फेक्शन पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आप 1 month के ड्यूरेशन में ले सकते हैं. बट एक बार नया स्ट्रेन हो गया है तो आई डोंट थिंक आपको पुराना वैक्सीनेशन का जरूरत है. मैम, किसी लेडी Yeah. का बेबी 5 मंथ का है, 5 Sorry? मंथ की बेबी की मदर है, एक लेडी 5 मंथ बेबी की मदर है. हाँ मंथ के बेबी की मदर है, जी. क्योंकि वो वैक्सीन ले सकती है, सी ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे ही है. जी, ब्रेस्ट फीडिंग और Yes. प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन नहीं अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो वैरायटी ऑफ वैक्सीन है वो ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट फीमेल्स में रिकमेंडेड नहीं है. सो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं बच्चे को Okay, तो ma'am. आपको नहीं लेना है वैक्सीनेशन, और प्रेग्नेंट भी है तो भी नहीं लेना है. ओके मैम, थैंक यू सो मच. जी, या ओके. ऑलराइट. ओके, आई डेंट सी, हम दोनों को कोई भी सिम्टम नहीं है. ओके, Ma'am, I have a question. यस प्लीज. डॉक्टर Ma'am, I'm already found positive. जो बच्चा दूध And- पिला रही है माँ, वो नहीं ले वैक्सीनेट. बाकी लोग प्लीज म्यूट पे कर दीजिए. नहीं ले लेते. अर्चना मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. निकी मैम आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए. गीता मैम म्यूट Ma'am, कीजिए. Ma'am, I'm already positive, and my son, 4-year-old, he's also found positive. My ओके ratio was 15, and my son that time he was 30. ओके Now that I cannot maintain distance with my son, so I have to feed him as well. So I'm Okay. using the sanitization thing. ओके. I'm trying my best. So will it really affect him? I'm really worried for it. He is already 4-year-old, Yes, ma'am. and you've been breastfeeding him till now also. No. So From like I'm like हाथ से खिलाना या अच्छा, spoon से हाथ से खिलाना. खिलाना and then okay, हाँ जी. okay, okay. No, nothing to worry as such, since you both are positive. बच्चों में complication नहीं होते हैं, बच्चों में complication के cases आ भी नहीं रहे हैं, and they've been recovering quite well than the adults. So कोई problem नहीं है. You have been following the protocol well, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. बेबी को कोई वापस री इन्फेक्शन या वापस से नया इन्फेक्शन नहीं होगा. I don't think that can happen. That's what, ma'am. Ma'am, and I'm sweating like a lot, especially in the night. Okay. Like thoroughly soaked up. अभी फिलहाल आपका कोर्स चल रहा है कोविड का, या यू हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द कोर्स? Not yet, ma'am. It's the 9th day today. Okay, it's the 9th day right now. Okay, that could be the reason out of your medicines only, because see, जो protocol, जो medicines दी जा रही है in this infection are many a times there has been prescribed steroids also, further medicines also, those been heavy on the body. So many people does have this issue of sweating, but with the time, with the symptoms, that will go away. I would again advise कि इसमें भी जैसे कोविड पेशेंट्स अगर कोई पॉजिटिव भी आता है तो you all can start up with homeopathic medicines. See, the reason why I'm mentioning this point is homeopathy is definitely helping people to recover really very fast. और दूसरा जो ये साइड इफेक्ट्स हो रहा है बाकी मेडिसिन का, क्योंकि काफी बार होता है बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती इतने हैवी मेडिसिन जो कि चल रही है, जैसे फैबीफ्लू, आइवरमेक्टिन, मेनी मेडिसिन आर गोइंग अराउंड which is being given for COVID patients. So वो सारा भी जो side effects हो रहा है उसको भी बचा रहे हैं. So you can start up with homeopathic medicine also, that will help you to recover really very fast and recover from the side effects of those medicine also. ये sweating वगैरह भी आपका clear up हो जाएगा. So Ma'am, you that can definitely medicine do that. Can be given to the kid as well. Should I give it to him also? Definitely. We've been prescribing medicine to a 15-day baby also, like as early as the birth happens. So ऐसा कुछ भी नहीं है. It can be safely given to people. Ma'am, can you share the name if you don't mind? Actually, that requires a proper observation, that requires a proper symptom criteria, like HRCT score क्या है, आपका fever का history क्या है, symptoms आपको क्या क्या आए, वो सारा कुछ discuss करके, and then we can prescribe this medicine. Because see, COVID में भी सिर्फ COVID के नाम से एक दवाई नहीं है. There are lot many homeopathic medicines coming up. जैसे कि जो नेक्स्ट मिथ मैं बता रही थी वो था एस्पिडोस्पर्मा को लेके, which is what अमिता जी has asked the question. But ऐसे ही जैसे एस्पिडोस्पर्मा एक मेडिसिन है, ऐसे होम्योपैथी में we have 100 to 150 medicines which have been given right from last year
लास्ट ईयर भी हमने दवाइयां बहुत दी थी, प्रिवेंटिव भी, इम्यूनिटी के लिए भी और इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए भी। और अभी भी ऐसा ही है, जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जो जो आपको फील हो रहा है उसके हिसाब से दवाइयां दी जाती है। तो दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर सिम्टम्स, और क्योंकि सिम्टम्स अगर प्रॉपर आपके कवर हो रहे हैं तो दैट मीन्स द मेडिसिन वुड वर्क फॉर यू वेल। तो ऐसी एक कोई दवाई नहीं है जो कि हेल्प करेगी इसमें। Ma'am, and chest pain is normal. Chest Okay. pain is normal, is it? I'm having the chest pain in my That left. is because of your HRCT score, because your HRCT score is 15, right? जी. हाँ, तो वो निमोनिया आपका सेटल्ड है। 15 इन स्कोर मीनिंग इट इज अप्रोक्सीमेटली 40% डैमेज टू द लंग। कितना आया है बबलू? कवर साहब, कवर का सिटी? सॉरी Sorry, ma'am. ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग, वो HRCT स्कोर के वजह से है, बिकॉज इट द निमोनिया इज ऑलरेडी सेटल्ड इन। वो चेस्ट पेन जो हो रहा है वो इसी के वजह से है। तो एक बार जैसे आपका निमोनिया क्लियर होगा, द चेस्ट पेन ऑल्सो विल गो अवे, बट यू नीड टू चेक अप विथ योर सैचुरेशन लेवल्स एज वेल, लाइक एवरी नाउ एंड देन। Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, so as I was coming to the topic, which was myth, which was can homeopathic medicine Aspidospirma mother tincture increase or maintain oxygen, जो कि most viral message हो गया WhatsApp पे, most wanted medicine भी हो गई है। Like in the last 2 days we have got so many calls regarding this medicine कि आपके पास available है क्या, हम रख लें क्या घर पे, या हम ऐसे ले लें क्या हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगा। So what do you think कि ये सच में उतना बेनिफिशियल है? The fact to this would be, जैसा मैंने बोला, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है जो कि ऑक्सीजन भी मेंटेन रखे और सिम्टम्स भी कवर अप करे, राइट फ्रॉम योर फीवर टिल योर बॉडी पेन, टिल वेदर चेस्ट पेन, टिल कॉफ और एनी ऑफ द सिम्टम्स अबाउट, मतलब कोई भी ऐसे सिम्टम्स है वो सारा कवर अप करेगा। तो ये एक दवाई नहीं है जो कि ऑक्सीजन के लिए दी जा रही है, बट डेफिनेटली आई वुड टेल यू ये बहुत अच्छी दवाई है जो कि ऑक्सीजन मेंटेन करे। बट दिस वुड बी रिक्वायर्ड इन पेशेंट्स हु आर, जिनका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, जो ऑलरेडी आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर पे है, उनके लिए है ये दवाई। ये घर पे रखने वाली दवाई नहीं है कि आप घर पे रखें और हम एक्स्ट्रा ले लें तो हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल रहे, ऐसा नहीं होता। हम अगर नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हम अगर कंफर्टेबल है, दैट मीन्स 100% ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में और हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये दवाई उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअली नीड है ऑक्सीजन की, जो एक्चुअली आईसीयू या एडमिटेड है या वेंटिलेटर पे है और जिनका HRCT स्कोर बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है या सैचुरेशन बहुत ज्यादा खराब है। वो भी डिपेंड करेगा कि उनके सिम्टम्स इस मेडिसिन से मैच करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मैं क्लियर आपको बताऊं तो होम्योपैथी में जो कि प्रिस्क्रिप्शन होता है, अगर आपने कभी होम्योपैथिक कोई डॉक्टर को विजिट किया होगा तो यू वुड हैव सीन वी आस्क लॉट मेनी क्वेश्चंस। मतलब एक, अगर आपने बोला कि मुझे खांसी हो रही है तो खांसी करके हम दवाई नहीं लिख के दे देते। वो पहला क्वेश्चन ये होता है कैसी खांसी है, सूखी खांसी है, कफ वाली है, कब चलती है, हंसने पे, बोलने पे, हाउ इज इट। सो वी आस्क लॉट मेनी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्यों हम पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं ताकि हम हर पर्सन को इंडिविजुअली ट्रीट करें, ना ही ऐसा कि 5 ग्रुप ऑफ पीपल है, 5 लोग हैं, सबको खांसी हो रही है, सबको सेम दवाई जाएगी, ऐसा नहीं होता है होम्योपैथी में। हर एक पर्सन का सिम्टम्स अलग होता है, हर एक पर्सन का टाइप अलग होता है, इसीलिए दवाइयां भी अलग जाती है। तो कोई भी मेडिसिन एक ही नाम से हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये ऑक्सीजन ही बढ़ाएगी या ये आपको यही ठीक करेगी कंप्लीटली। So the fact to this would be, do not buy this medicine unless and until it is advisable. डॉक्टर से आप, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अगर कोई सिम्टम है तो आप बताइए, आप कोई रिलेटिव के लिए भी लेना चाहते हैं तो सिम्टम्स डिस्कस कीजिए, उनको प्रॉब्लम क्या है, और फिर ये दवाई ले। ऐसे ही एक्स्ट्रा में या घर में ऐसे ही नहीं रखें। Yes, please. Somebody wants to ask a question. Yes, ma'am. Yes. So, ma'am, my query is pertaining to those patients who are feeling quite weak Yes. post-COVID. So it is almost prevailing in a lot of patients
ones Yes. who have recovered from COVID. So what Yes. the medicine you would recommend to feed them? For the recovery of COVID, जी. for the post recovery of COVID. Okay, for that them also we do have medicines, we do have many homeopathic medicines for them also, जिसमें काफी टॉनिक्स भी आते हैं होम्योपैथी के, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करें इन केस कुछ वेट लॉस या कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हुआ होगा तो, बट दैट विल ऑल डिपेंड ऑन द कोर्स ऑफ योर डिजीज. लाइक किसी किसी को होता है कि कोविड सिर्फ जैसे 3 दिन फीवर आया एंड देन यू वर परफेक्टली ओके और फिर वीकनेस हो गया. किसी को होता है ये निमोनिया का स्टेट हुआ है और ये वीकनेस कंटिन्यू चल रहा है, तो उनका जो एक्चुअल स्टेट था, जो एक्चुअल उनको प्रॉब्लम हुई थी, उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि उनको मेडिसिन हम क्या दें. तो मेडिसिन तो अवेलेबल बहुत सारी है, बस एक बार आप डिस्कस जरूर करें अपने सिम्टम और फिर आप डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं. Excuse me, ma'am, one question. Yes, Like please. if I am infected with COVID right now, तो मैम Okay. एक टेस्ट हमने कराया and I have been detected positive. तो Okay. next test कब करवाना चाहिए so that I can find out कि now I am fine? ओके, सी बेसिकली जब भी आप कोविड देखा जाता है तो आपकी फीवर के डेज काउंट किए जाते हैं कि आपको पहला दिन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ फीवर क्या था. तो अगर फर्स्ट डे ऑफ फीवर समझो फॉर एग्जांपल इट इज 1st of April फॉर एग्जांपल, और आपने टेस्ट समझो 5 तारीख को करवाया है, तो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो 1st के हिसाब से ही होगा, मतलब 1st April के हिसाब से, प्लस आपका लास्ट डे ऑफ फीवर आपको कब आया. तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं कि आप जो टेस्ट कराएं वो लगभग 10th 11th डे डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स उसके हिसाब से करवाएं. अगर फीवर नहीं आ रहा लास्ट 3 दिन 4 दिन से, तो आप 10th 12th डे करवा सकते हैं. और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, खांसी वगैरह भी चल रही है, तो प्रेफर कीजिए कि वो 14 डेज के बाद ही करवाएं ताकि वो नेगेटिव ही आए. क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि समझो आपको 1st April को फीवर आया और उसके बाद में फीवर नहीं आ रहा है, हल्की फुल्की खांसी है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वापस करवा रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है. तो ये बोला जाता है, माना जाता है कि 14 डेज ये वायरस आपकी बॉडी में रहता है. तो वो आप अगर टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव दिखता है. दैट विल ऑल्सो डिपेंड. इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि आप 14 डे के बाद ही कराएं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू गॉट इन्फेक्टेड और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू वर इल. वो 14 डेज के बाद कराएंगे तो वो नेगेटिव आएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ सिम्टम्स आर बेटर यू कैन गेट योरसेल्फ टेस्टेड. लाइक अगर फीवर आपको लास्ट 5 दिन से नहीं आया या 6 दिन से लगभग नहीं आया, तो 6th डे आप अपना ये चेक करवा सकते हैं. हेलो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. या प्लीज. अगर जैसे एंटीबायोटिक और ये चालू है जी, एलोपैथी, उसके जी. साथ क्या पैरेलल हम होम्योपैथी दवाई भी ले सकते हैं? डेफिनेटली आप ले सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. सी मेनी पेशेंट्स डू दैट ओनली कि ऑलरेडी समझो आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, वट एवर मेडिसिन आर गोइंग ऑन, इसके साथ अगर होम्योपैथी लेते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी. और दूसरी चीज जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, जो कि निमोनिया सेटल हो रहा है, वो चीज नहीं होगी. तो दैट इज द प्लस पॉइंट एंड दैट इज अ बेनिफिशियल पॉइंट हियर. सो डेफिनेटली यू कैन टेक सेफली होम्योपैथी अलोंग विद एलोपैथी. And what is the time difference between the allopathy dawai and the homeopathy? You can keep approx like 20 minutes or half an hour approximately. Okay, thank you so That much. Yeah, my pleasure. मैम होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं अभी? Yes, definitely है. होम्योपैथी में जैसा मैंने बोला, अब एक और चीज जैसे मैं बताऊं फिर होम्योपैथी के बारे में. सो होम्योपैथी का जो एक्शन है, जो लॉजिक है कि ये होम्योपैथी नाम ही जो है ना, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और पैथी मीनिंग साइंस. तो ये जो साइंस है, होम्योपैथी जो है, ये आपकी बॉडी के सिमिलर वे में एक्ट करती है. अब मतलब इसका ये होता है कि भले आप किसी भी चीज की दवाई लें होम्योपैथी में, वेदर फॉर स्किन डिजीज, वेदर फॉर हेयर फॉल, वेदर फॉर पीरियड्स इश्यू, वेदर हॉर्मोन्स, एनीथिंग यू टेक, और वेदर फॉर कोविड, होम्योपैथिक मेडिसिन का काम ही ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए और आपके जो रिएक्शन पावर है, जिससे कि हम बॉडी हमारी जैसे रिएक्ट करती है, तो उसको हम बढ़ाएं, जिससे कि आपकी बॉडी नेचुरली रिकवर कर जाए. दिस इज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ होम्योपैथी. तो यही चीज
कोविड में भी एप्लीकेबल है, बिकॉज कोविड में हमें चाहिए कि हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ाए, तो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि इम्यूनिटी आपका बूस्ट अप कर दे। तो अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है तो आज से आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे, और इन केस गलती से अगर कुछ होता भी है तो सिम्टम्स एज सच नहीं आते। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ, लाइक लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो, जिनको हमने पहले से इम्यूनिटी मेडिसिन दे रखी थी उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ऐसी इम्यूनिटी मेडिसिन भी अवेलेबल है होम्योपैथी में। अगेन आई डोंट क्लेम मेडिसिन का नाम कि स्पेसिफिक एक ही दवाई नहीं है जो कि आपको वर्क करेगी, बट वो आपके सिम्टम्स पे, आपके मेडिकल हिस्ट्री पे, सब पे डिपेंड करके और फिर दी जाएगी। तो पहले कंसल्ट करें और फिर ये इम्यूनिटी वाली मेडिसिन लें, तो दैट विल हेल्प यू एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑल्सो फॉर कोविड। हेलो, या डॉक्टर, मुझे किसी ने एक रेफरेंस बताया है कि फॉर फैटीग एंड ऑल 5 FOS, इज दैट करेक्ट? Yes, it is correct. That is a very good medicine for fatigue. Whether for generalized fatigue, अगर आपको वैसे भी थकान बहुत ज्यादा होती है, you feel drowsy or sleepy throughout the day, या नींद भी अच्छी नहीं है, तो you can take it. That is not a problem. कैसा It's a good लेना medicine. It has to be taken like 2 pills twice a day. Okay. And somebody again told me एक कोई इन्फ्लुएंजम करके कुछ प्रिवेंटिव, वो क्या सबको ही ले सकते हैं? नहीं, सबको रिकमेंडेड नहीं है। इन्फ्लुएंजम इज अगेन मेडिसिन दैट इज बीन एक्टिंग एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, बट फिर उसका डोजेस क्या होगा, एज क्या है पेशेंट का, वो डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से दी जाएगी, क्योंकि वो 30 में भी होती है, 200 भी होती है, 1 mg होती है, पोटेंसीज होती है कुछ इन्फ्लुएंजम की भी। तो दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द एज क्राइटेरिया एंड मेडिकल बैकग्राउंड. But 5 FOS can be taken by anybody. By all, yes. 5 FOS can be taken by all. So 2 pills 2 times a day. And yes. कितना मतलब कब, जैसे you can take it just for a month. बस एक महीने में अगर if you're feeling better, stop it. It is not required. Lifetime लेने का जरूरत नहीं है. Okay. तो general fatigue जैसे कोविड में कई लोगों को हो रहा है. Yes, you can have that. And another thing I wanted to ask, you are in Jaipur or in Delhi? No, I am in Jaipur right now. Okay. Yes. So I am calling from Delhi actually, so I was wondering how to consult and how to get if we ever. Okay. No problem at all. We'll share you with the contact details also. So if you want it, anyways, अभी online ही चल रहा है सब कुछ. Everything is going online. So if you want any help from our end, definitely you can contact us. Okay. So you can courier the medicines. Yeah. Sure, we can do that. Okay. Thank you. Yeah. Okay, so I'll come to the next slide now. किसी को कोई question, कुछ queries, कुछ पूछना होगा? मैम, आर्सेनिकम अल्बम जो दवा है 30C, yes. अल्बम 30C, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना? Yes, आर्सेनिक भी एक मेडिसिन है जो कि वही लास्ट ईयर बताई गई थी फॉर द लास्ट ईयर्स सिनेरियो. आर्सेनिक 30 बताई गई थी कि आर्सेनिक करके थी एक, फिर एक कैम्फोरा थी, इन्फ्लुएंजनम थी जो कि अभी बताया उन्होंने. ऐसी बहुत सारी मेडिसिन थी, बट अभी के सिनेरियो में ये वर्क करेगी वी कैन नॉट से, बिकॉज ये सिम्टम्स इतने वेग आ रहे हैं, सिम्टम्स इतने अलग अलग आ रहे हैं दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली टेल कि आर्सेनिक ही वर्क करेगा, बट दैट विल डिपेंड ऑन द सिम्टम्स और एनी मेडिकल क्राइटेरियाज. खाली आर्सेनिक से इस बार का जो कोविड है वो इतना नहीं कवर अप कर सकता, बट लास्ट ईयर डेफिनेटली आर्सेनिक वाज हेल्पिंग पीपल. और मैम, नींद के लिए भी कोई दवा है क्या? नींद के लिए? जी मैम. जी, नींद की भी आती है, अवेलेबल है. नींद की भी काफी मेडिसिन अवेलेबल है. हाँ, वो मेरी सासू माँ डेली लेती नींद की दवा, तो मैं चाहती हूँ कि एलोपैथ ना ले वो, इसीलिए पूछ रही हूँ. डेफिनेटली अवेलेबल है. आप एक बार डिस्कस कर लेना. हम कांटेक्ट डिटेल्स आपको अभी शेयर कर देंगे. लास्ट स्लाइड में कांटेक्ट डिटेल्स होगा, तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए फोन पे और फिर हम अकॉर्डिंगली कुरियर कर देंगे मेडिसिन आपको. ओके मैम, थैंक यू सो मच. ओके. ऑलराइट, सो आई थिंक आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. यस मैम, प्लीज. Yes. बाकी क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं. पहले मैम आप अपनी स्लाइड्स कंप्लीट कर लीजिए. Sure. Okay, so the next slide is again how COVID-19 is impacting people with diabetes. जैसे अभी one of you
जो कोविड पॉजिटिव है, अगेन आपने बोला कि डायबिटीज था और कॉम्प्लिकेट बहुत हो गया, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। और ये इसीलिए स्लाइड मैंने इसमें डाली, बिकॉज अगर आप में से किसी को भी डायबिटीज है या ब्लड शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल नहीं है या मेडिसिन ले रहे हो, तो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर अलर्ट देन द अदर पीपल। रीजन बीइंग, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे ऑलरेडी हम प्रोग्रेसिंग डिजीज बोलते हैं या साइलेंट किलर बोलते हैं। आई वोंट से दैट टर्म, बट एक्चुअली मेडिकल बुक्स में हम यही डायबिटीज के लिए टर्म यूज किया जाता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस योर इम्यूनिटी। तो अगर ऑलरेडी ऐसी बीमारी है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। और सिम्टम्स अगर कुछ भी डेवलप हो रहे हैं स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट में, तो आपको पहले ही दिन टेस्ट अपना करवाना है। बिकॉज वही चीज होती है कि हम 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, एंड देन वो रुकने के चक्कर में कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाता है कि देन वी फील हेल्पलेस लेटर ऑन। सो वी डू नॉट वांट एनीबडी टू सफर लाइक दैट। किसी को भी अगर है तो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, बिकॉज एज आई हैव गिवन द आंसर हियर इज प्रॉब्लम people with diabetes face is they are more likely to have worse complication if they get it. Not greater chances of getting the virus, but also more important health condition। मतलब अगर समझो किसी को डायबिटीज के साथ में हार्ट डिजीज भी है या एडिशनल कोई और भी बीमारी है, तो कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज्यादा हो सकते हैं। सो प्लीज बी अ लिटिल अलर्ट अबाउट दिस। ये मिथ नहीं है, बट ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन, एक पॉइंट मैंने इसमें एड अप कर रखा है। करते हो? नहीं। Yes. नहीं। जी, anybody has asked any question? हेलो हेलो, हाँ जी मैम, एक इस पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज घूम रहा है, उसमें 2 दवाइयां दे रखी है उन्होंने जी, होम्योपैथिक की, कि इसको लेने से तुरंत ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा जी। तो उसका नाम है, एक तो वेंडियम 30, 15 दिन 1 कप पानी में देने से ऑक्सीजन लेवल तुरंत मेंटेन हो जाता है जी। और एक एस्पिडोस्पर्मा है। एस्पिडोस्पर्मा, जी जी जी, मैंने अभी जस्ट इसी के बारे में डिस्कस किया। एस्पिडोस्पर्मा जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि एक्चुअली कारगर है कि नहीं है टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल, तो आंसर टू दिस वुड बी ये जो मेडिसिन है ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में यूजुअली यूज की जाती है, बट दैट विल ऑल डिपेंड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का सिम्टम क्या है, खांसी है कि नहीं है, फीवर है कि नहीं है, आपके सिटी स्कैन में स्कोर क्या आ रहा है, ये सब डिसाइड किया जाता है और फिर दवाई दी जाती है। तो ये तो 2 मेडिसिन है जो कि पॉपुलर हो रही है, पर ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में ऑक्सीजन भी मेंटेन करेगी तो कोविड को भी रिकवर करेगी। सो आई वुड एडवाइज कि ऐसी कोई भी दवाई आप एक्स्ट्रा पहले से ना लें, या पहले से किसी को बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए या प्रिस्क्राइब किए ना ले, क्योंकि वो अफेक्ट नहीं करेगी अगर वो इंडिकेटेड नहीं है। तो अगर पेशेंट को सूट प्रॉपर कर रही है, उनके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो ही वो वर्क करेगी और तो ही वो 100% ऑक्सीजन बढ़ाएगी। सो नेवर टेक सच मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जी जी, थैंक यू। Okay. Dr. Anamika, I'm having one question, Chandana. Yeah, please. Actually, I am a post-COVID patient now. So I'm undergoing through this steroid and all. Okay. Okay. And it fluctuates the sugar level normally. Okay. Very vaguely. Yeah. So I have to balance that, and I just want to take fruits like Mossambi and all. So what are the quantities which I have to maintain for that? Okay. See, quantity on this would be like vitamin C intake throughout the day should be approximate 500 mg, which is what we advise. अब 500 mg हम ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, बट जस्ट दैट इफ यू वांट टू टेक लाइक समझो लेमन में बहुत ज्यादा पोर्शन ऑफ विटामिन सी होता है एक साथ में, मौसमी में डिपेंडिंग ऑन द सारनेस वो होता है, तो आप जैसे मौसमी का जूस पी सकते हैं विच वुड बी लाइक 2 glasses. यू कैन हैव लेमन वाटर ऑल्सो 1 glass ऑफ इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर खाने के अलावा भी आप देखना चाहें तो विटामिन सी का टैबलेट एक डायरेक्टली ले सकते हैं विच इज डायरेक्टली 500 mg. So this is how you can maintain your vitamin C levels and help your immunity recover faster. Okay, thank you. Yeah. Doctor, is it true that vitamin C is not good for is a blood thickener after some time?
बिकॉज आई एम अ बीपी पेशेंट. किसी ने बोला बहुत ज्यादा नहीं लेना विटामिन सी कई दिनों तक और कई महीने. नहीं, नॉट एट ऑल. विटामिन सी बेसिकली वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है. मतलब ये ऐसा विटामिन है जो बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही होगा, और जो बचा हुआ विटामिन है वो आपकी यूरिन में वैसे ही फ्लश आउट हो जाएगा. तो these vitamins are water soluble vitamins and it never affects or never harm your body. एक विटामिन बी और विटामिन सी ये 2 वाटर सोल्यूबल होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ऐसा कुछ नहीं है बीपी पेशेंट्स में कि ब्लड थिक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मतलब हम ले सकते हैं. डेफिनेटली ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं. थैंक यू. या okay, so I would come now to what should I do if I think I'm developing symptoms of COVID. The most important and the most related question these days, which is क्या करें अगर मुझे symptoms ऐसे feel हो रहे हैं. तो पहला चीज तो घर पे आपको रहना है बट पैनिक नहीं करना है. दूसरी चीज डॉक्टर से जल्दी इन्फॉर्म करना है कि आपको सिम्टम्स क्या क्या डेवलप हो रहे हैं, घर में किसी को अगर प्रॉब्लम कुछ हो रही है या नहीं हो रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक एक्शन योर. अब व्हेन यू कॉल अ डॉक्टर, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट भी करेंगे तो पहला क्या करेंगे, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी ग्लूकोज रीडिंग जो कि ब्लड शुगर लेवल्स जो होता है, हम यूजुअली घर में एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं अगर कोई डायबिटिक है तो, और वैल्यूज चेक करके आप अपने डॉक्टर को बताएंगे. दूसरी चीज क्या करेंगे, टेम्परेचर की रीडिंग्स जो कि मैंने बताया, थर्मोमीटर से आपको हर 4 घंटे में अपना टेम्परेचर चेक करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि हमें ये टेम्परेचर है और ये रीडिंग्स आ रही है. नेक्स्ट थिंग जो कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, जैसा मैंने पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, ये चेक करके आपको अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है कि ये हो रहा है. आपको पहली चीज तो यही होती है, ये तो मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की बात कर रही हूँ, पर पहली चीज आप प्लीज पहला ये करना तो शुरू करें. ऐसा नहीं फीवर आ गया है तो लेट अस वेट फॉर 1 more day एंड देन सी, फिर हम ये पल्स ऑक्सीमीटर लाएंगे या फिर टेम्परेचर चेक करेंगे. डोंट डू दैट. फर्स्ट डे इटसेल्फ यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन कि डायबिटिक हो तो पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करो, टेम्परेचर रीडिंग्स चेक करो, अपने ऑक्सीजन लेवल्स आपको अपने चेक करने हैं, और फ्लूइड कंजम्पशन अपना देखना है कि आपने पानी कितना पिया है दिन भर में. तो फ्लूइड का इंटेक मैक्सिमम बढ़ाना है जितना हो सकता है, एटलीस्ट 3 liters पर डे. मतलब मोर देन 3 liter वुड बी गुड, लेकिन 8 से 12 ग्लासेस दिन में इतना पानी पीना है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इंक्लूड कोकोनट वाटर और लेमन वाटर या वाटरी फ्रूट्स, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में. तो वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं. ये अगर आप फर्स्ट डे ही कर ले तो आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बीमारी से रिकवर करने के लिए. एंड इन केस लाइक अगर आपको और कोई सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो वो आप डिस्कस कीजिए, डॉक्टर को बताइए वेदर जुकाम हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है क्या, एंड डायबिटिक है तो पहले ही दिन आप इन्फॉर्म कर दीजिए डॉक्टर को कि मुझे डायबिटीज है या जो भी बीमारी है जिनकी हम ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं. So this is what you have to do right from the first day only if you are getting symptoms of COVID. But the most important point to this would be, पहला तो आप खुद को ये अलर्ट रहिए कि जरूरी नहीं है कि मुझे बुखार आया है तो ये मामूली बुखार है या मेरा गला खराब है इसीलिए बुखार है, ये कोविड का बुखार हो सकता है. सो प्लीज बी अलर्ट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ एंड follow these all points to the best as you can for you and your family also. Precautions and measures to follow. अब अगर ये तो मैंने ये स्लाइड तो ऐसे बताई थी कि अगर सिम्टम्स डेवलप हुए तो क्या करना है, और नेक्स्ट चीज सिम्टम्स नहीं भी हुए तो क्या करना है. तो ये अवेयरनेस हमारा लास्ट ईयर से ही चल रहा है कि आपको हैंड वॉश अपना प्रॉपर करना है एटलीस्ट फॉर 20 seconds. यू हैव टू सैनिटाइज एवरीथिंग कमिंग इन द हाउस, whether it is vegetables, whether it is any products, whether it is milk packets, anything which is coming in the house, you have to sanitize them and wear your mask properly. अब मास्क पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से मास्क चल जाएंगे. What do you think? What are the best masks for protection of COVID? What do you think? N95. N95, yes. See, मैं थोड़ा सा सर्जिकल मास्क. जी सर्जिकल मास्क, ओके.
मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर अप Three करना layered cotton mask. कॉटन मास्क, ओके, 3 layered. 3 layer cotton mask, okay, so I'll just clear up my point here. अगर कोई इन्फेक्टेड है, मतलब किसी को अगर सिम्टम है जो कि फीवर आ चुका या कोविड के ऐसे सिम्टम्स है, तो उनको N95 की जरूरत है पहनने की। घर पे भी, आपको घर पे भी पहनना है ताकि बाकी घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, आप अगर कोई बाहर का एरिया विजिट कर रहे हैं जहां पर किसी का एक्सपोजर होने वाला है, तो भी N95 ही आपको पहनना है। Apart from that, what you can do is you can wear surgical mask if you are at a distance. अगर डिस्टेंस पे है तो सर्जिकल या 3 लेयर्ड कॉटन मास्क आप पहन सकते हैं, बट सिंगल लेयर या पतला सा जो कॉटन मास्क, अपने जो कपड़े के मास्क होते हैं, दे डू नॉट वर्क एट ऑल। वो नॉर्मल आपके धूल मिट्टी कवर अप करने में भी उतना काम नहीं आते हैं। सो डू नॉट वेयर अ सिंगल मास्क और अ सिंगल क्लॉथ का मास्क। इट शुड बी एटलीस्ट 3 लेयर, और इट कैन बी अ सर्जिकल मास्क, और इट कैन बी एन N95 मास्क। नहीं तो जो रीयूजेबल मास्क आते हैं, मोटे वाले जो आते हैं जिसमें कुछ कुशन सा होता है अपर लेयर में, वो भी आप पहन सकते हैं। तो दीज आर द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस इलनेस। तो अगर घर से बाहर जा रहे हो तो प्रेफर वेयरिंग N95 ओनली इफ यू आर इन हाउस ओनली, एंड इफ यू आर इन्फेक्टेड तो N95 पहनो। अगर घर में कोई मेंबर ऐसा आ रहा है, वेदर क्लीनर और एनीबडी इज कमिंग इन द हाउस, मेक इट अ पॉइंट कि घर वाले सब लोग ही मास्क पहन के रखें, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपोजर किसी के ना हो। दिस इज व्हाट वी कैन डू। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू कैन डू इज वार्म वाटर इनटेक, मतलब गर्म पानी का इंटेक करना है। अब गर्मी है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल वार्म वाटर का काम ये होता है कि इट क्लियर्स अप योर ट्रैक। मतलब जब आप पानी पियेंगे गर्म, तो नेचुरल सी बात है, आपका जो एयरवे ट्रैक है, जो आपका इनटेक पैसेज है, इसोफेगस है, वो क्लियर अप रहता है। तो दिस डज हेल्प इन द क्लियरेंस ऑफ द पैसेजेस। तो आपको गर्म पानी का इंटेक लेना है एटलीस्ट वंस अ डे, लाइक मॉर्निंग में एक बार ले ले, रात को सोने से पहले ले ले, तो भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोने से पहले स्टीम इनहेलेशन जरूर ले, जिससे कि इन केस अगर दिन भर में ऐसा कुछ हुआ भी है या कोई इन्फेक्टेड ऐसा कुछ हुआ भी है, तो रात भर में ही नोज का भी जो पैसेज है, जो नाक का एयरवे है, ये भी क्लियर अप हो जाए। स्टीम से सारा म्यूकस बाहर निकलेगा, एंड दिस विल डज हेल्प। अवॉइड गोइंग आउट इन गैदरिंग्स और एनी लाइक, अगर कुछ काम नहीं है तो प्लीज डू नॉट गो आउटसाइड ऑफ योर हाउस, and report to a doctor as soon as you feel any symptoms are coming up. So you can definitely contact us or your nearest doctor, but please contact a doctor before it is too late. These are the precaution measures which I follow, and how homeopathy can help. वैसे तो मैं discuss कर चुकी हूँ already homeopathy के बारे में, but as I told you, होम्योपैथी का जो काम है, it is basically to improve your immunity. So it won't affect, like it do not have any side effects. It will help you as a preventive drops also, जो कि immunity drops जिसको हम बोलते हैं। होम्योपैथी आपको, भले आपकी बीमारी मतलब अक्यूट बीमारी है, तो उसको भी बहुत जल्दी ठीक करेगा। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में मिथ होता है कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है, मतलब इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम। इट इज नथिंग लाइक दैट। अगर सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं, अगर प्रॉपर दवाई सही टाइम पे सही डोज में गई है, तो वो इंस्टेंटली भी असर करती है। we've been handling patient, I have been handling COVID patients only with homeopathy. In fact ऐसा कि अगर आपने फर्स्ट डे ही कांटेक्ट किया है या फर्स्ट डे ही होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर दी है, तो आपकी ऑलमोस्ट रिकवरी विद इन 5 to 7 days में रिकवरी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस आगे नहीं होते, एंड दिस हैपेंस ओनली विथ होम्योपैथी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सिंस लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो। तो खाली अगर होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप स्टार्टिंग में ही अगर ले ले, तो आपको इनफैक्ट ये एलोपैथिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक और ये सब की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और इन केस अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो इसके साथ भी होम्योपैथी आप ले सकते हैं, विच विल हेल्प यू रिकवर रियली फास्टर, and that will definitely help you build your immune system and allows your body to heal itself and cures your illness from the root cause. तो ये काम है होम्योपैथी का in whether COVID or in other diseases also. Okay,
get your homeopathic preventive today. That was okay. So this is what I'm sharing our details, like my details with you all. ये तो हमारे सेंटर का नंबर है which is Root Cure Homeopathy which is in Jaipur right now, and I'm sharing this number with you all. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू कोविड और anything that you want to talk regarding your health, you can contact us on the below this given number here. Anybody has any questions now? We can have a little session now because I think the slides have been covered. तो आपको कोई भी queries, question कोविड को लेके या और कोई भी चीज को लेके? हेलो मैम। या हेलो मैम, आपने जो बोला कि हेलो मैम, कोविड होने के 7-8 दिन बाद पराठा दे सकते हैं बच्चे को? 7-8 दिन बाद? एक बार आप वापस से बोलेंगे आपका क्वेश्चन? जैसे किसी को कोविड हो गया, 7-8 दिन के बाद पराठा देते हैं क्या खाने के लिए? 7-8 दिन बाद क्या ले? मुझे से वो क्लियर नहीं हो मैम, आई थिंक ये कह रही है पराठा। पराठा, अच्छा, नो, पराठा इज नॉट एडवाइजेबल। सी, पराठा या ऑयली कोई भी चीज जो है ये आपके गले में म्यूकस और बनाएगा, खांसी और प्रोड्यूस करेगा। तो जब आप ऑलरेडी रिकवरी स्टेट पे है और उस टाइम अगर आप ऐसी कोई चीज करते हैं तो वो आपकी इन्फेक्शन को वहीं रोक देगा। सो आई थिंक जब तक पूरी रिकवरी नहीं हो जाती, एटलीस्ट आप अवॉइड करें किसी भी टाइप का ऑयली या ऐसा घी का सब्सटेंस जिससे कि आपका गला या नाक जो कि एयरवे अपना है इनमें कोई प्रॉब्लम आए। सो आई डोंट थिंक यू शुड टेक। कोई तो बच्चे मानते नहीं ना, मुश्किल होती है जी। मैम जस्ट एक क्वेश्चन आपसे था कि प्लीज बोला था कि जो ड्यूरिंग दिस बेबी को फेक कराती है कोविड कंटिन्यू के बीच में, सॉरी, should I complete? Yeah, please. जी, so what the diet patient should take during this course of time while he is suffering and while he has recovered a bit? Okay, for prevention also and in case if you are suffering also, for both way. Yes. Yeah, okay. And once he has recovered, then there is some time where he feels quite low in energy. So right. That is the phase where we are concerned what needs to be given to patient. Yes, right. So what we can do here is, first of all, most and foremost thing is your water intake, your hydration, whether you are infected or not infected, whether you have recovered or not recovered, whether what age you would be. पहला चीज तो आपका water intake बहुत अच्छा होना चाहिए, at least 8 to 12 glasses it should be there. Next thing what you can do is keep a good salt balance. अब salt का मतलब नमक का balance नहीं, salt का meaning जो ये ORS sachets आते हैं, ये जो अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप नॉन डायबिटिक और बीपी अगर नहीं है आपको, तो आप ये जो पैकेज, ये जो सोल्यूशंस होते हैं ये आप ले सकते हैं। मीनिंग आपको अगर इन्फेक्टेड हैं तो आपको लेना ही है, और अगर इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो जैसे यू कैन हैव लाइक, अगर समझो जूस वगैरह आपको घर पे बना रहे हैं तो उसमें आपने समझो ग्लूकॉन डी डाल दिया या थोड़ा सा ये डाल दिया, तो इससे सॉल्ट बैलेंस आपका अच्छा हो जाए, तो ये चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी का इंटेक। अब विटामिन सी कैन बी टेकन इन एनी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स विच कंटेन्स विटामिन सी, जैसे लेमन है, मौसमी है, वेजिटेबल जैसे शिमला मिर्ची, दीज ऑल हैज विटामिन सी का बहुत अच्छा गुड सोर्स, सो यू कैन ऐड दैट इन योर डाइट। मतलब कुकुम्बर भी हो गया, वाटरमेलन हो गया, सो मैक्सिमम विच हैज विटामिन सी का इंटेक दैट यू कैन डू। Another thing that you want to add here is good protein source. अब ये protein source इसीलिए I'm pressurizing because it has been seen in the research that people who take good protein, मतलब पहले से, अब protein का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा protein powder ही लेना है, but जैसे स्प्राउट्स वगैरह हो गए, या if you are having non-veg तो egg हो गया, पनीर हो गया, if you are taking a good protein source so that will help your body to heal faster, और उससे आपको जो body pain है, weakness है, वो उसमें रिकवरी में भी हेल्प करेगा, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो भी हेल्प करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़े इसलिए। तो यू कैन हैव दीज गुड प्रोटीन सोर्स इन योर डाइट।
अगर वैसे आप नहीं खा पा रहे हैं या कोई एजेड है जो इतना इंटेक नहीं कर पाते, तो यू कैन हैव प्रोटीन पाउडर्स इन योर डाइट ऑल्सो। आप दूध के साथ में 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं डेली बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेन एवर यू टेक अ प्रोटीन, अगेन आपको थोड़ा वाटर इनटेक का ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक आपका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन यूजुअली रिक्वायर गुड सोर्स ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट इट। एंड लास्टली, आपको कोई भी टाइप की ज्यादा ऑयली स्टफ, कोल्ड स्टफ, मतलब ज्यादा ठंडी चीजें हो गई या ज्यादा मिर्च मसाले ज्यादा हो गए, हैवी फूड्स जो हो गए, वो आपको अवॉइड करना है। तो दिस इज व्हाट विल कंसिस्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट फॉर प्रिवेंशन ऑल्सो, हु आर इन्फेक्टेड फॉर देम ऑल्सो, एंड जिसका रिकवरी फेज भी चल रहा है उनके लिए भी। मैम इसमें एक क्वेरी ये था कि कई बार जैसे हम ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करता है, तो उसमें एक किसी ने डाउट हमें सजेस्ट किया था कि इट मे क्रिएट निमोनिया। तो इट कैन क्रिएट निमोनिया। हाँ, बहुत ज्यादा ग्लूकोज आप देंगे तो वो थोड़ा सा निमोनिया का इशू क्रिएट कर सकता है पेशेंट। नो, नॉट एट ऑल। हाउ कैन अ ग्लूकोज, नॉट एट ऑल, हाउ कैन अ ग्लूकोज क्रिएट निमोनिया? निमोनिया का जो प्रॉब्लम, निमोनिया का मीनिंग क्या है? निमोनिया मीनिंग इट्स अ लंग्स का इन्फेक्शन। जैसे हमें गले का इन्फेक्शन होता है, नाक का होता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, वैसे ही लंग्स का इन्फेक्शन होता है जहां पे कफ जम जाता है और कफ जमने के वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निमोनिया। सो अ हाई ग्लूकोज इंटेक विल नेवर डिस्टर्ब निमोनिया, बट अगर आप हाई ग्लूकोज इंटेक कर रहे हो, ग्लूकोज स्पेसिफिकली मतलब मीठा ज्यादा ले रहे हो और डायबिटिक बॉर्डर लाइन हो या उस एज क्राइटेरिया में हो, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस जरूर है, बट निमोनिया आपको ग्लूकोज के वजह से निमोनिया नहीं हो सकता। So this can never happen. Okay, this is a myth. Okay. Yeah. Please, thank you for suggestion. मैम जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है वो यदि वैक्सीन नहीं ले सकती तो कोई प्रिवेंशन है उसके लिए फिर? यस, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो ये वैक्सीनेशन चल रहा है अभी, जो हमारा स्ट्रेन जो चल रहा है, इंडियन वैक्सीन जो है, ये ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नहीं है। सो दे कैन नॉट टेक दिस वैक्सीनेशन। तो इसके जगह पे क्या रख लेंगे फिर वो प्रिवेंशन के? यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रिकॉशंस। जो ये प्रिकॉशंस चल रहे हैं, जो मैंने डाइट का भी बताया आपको, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी ऑल्सो, कि होम्योपैथी की भी इम्यूनिटी मेडिसिन आती है, आप वो ले सकते हैं जिससे कि इम्यूनिटी बूस्टेड रहे। तो हमें फोकस ये करना है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, बट वैक्सीनेशन आप नहीं ले सकते। अब वैक्सीनेशन का काम भी यही है कि इम्यूनिटी ही आपका स्ट्रॉन्ग रहे। तो वही चीज जब हम हमारे डाइट से कर सकते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा फिर। ओके, थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am. Yeah, please. Ma'am, my father-in-law just recovered from COVID. He is a diabetic and BP patient. Okay. Still now he is on medication. Okay. But उनको weakness है, तो हम उनको खाने को क्या दे सकते हैं? Means ज्यादा fruits भी नहीं दे सकते because of sugar. उनका sugar 400 पहुंच गया था when he was infected. Okay. तो उनको ऑक्सीजन वगैरह सब अप्लाई हुआ था, but now he is okay and he is at home. Okay, okay. So here you can give him protein powders. अब protein powders में भी sugar free protein powders भी आते हैं जिसमें शुगर्स नहीं होता और वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। तो एटलीस्ट जो एनर्जी सोर्स होगी बॉडी में, मतलब रिकवरी के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिससे कि नेचुरली आप अपना डेली का काम भी कर लो और रिकवरी भी हो जाए, तो वो प्रोटीन से हो जाएगा। तो यू कैन हैव प्रोटीन पाउडर, मिल्क दे सकते हो उनको, आप लिक्विड्स के सोर्सेस दे सकते हो, सूप्स दे सकते हो जिसमें सब्जियां सारी हो जाए आपकी, दलिया खिचड़ी वगैरह दे सकते हो जिसमें भी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा हो। एंड ये मेजर, एंड ऑल्सो मल्टीविटामिन ऐड अप कीजिए। अगर मल्टीविटामिन नहीं चल रहा है तो वो उसके अंदर हेलो हेलो, क्वेश्चन। और आप में से और किसी को कोई भी क्वेरी पूछनी हो या? मैम शुगर फ्री कितना हेल्पफुल रहता है ड्यूरिंग, अगर हम डायबिटिक को टी में डाल के देते हैं तो इज इट हेल्पफुल, या वो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है?
शुगर फ्री जो टैबलेट्स होती है वो हेल्पफुल होती है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, बट अगर आप ये लंबे टाइम तक लें तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता, या दिन भर में हर चीज में ही आप उसको डालें तो दैट इज ऑल नॉट रिकमेंडेड। मतलब कभी कभार अगर आप चाहें तो आप यूज करें, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रेगुलर प्रोडक्ट और एज अ रेगुलर सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, बिकॉज अगेन देयर इज वन मोर रिसर्च टू दिस। अगर आप ये ज्यादा यूज करेंगे तो इट हैज अ साइड इफेक्ट ऑन योर बॉडी ऑल्सो, एंड मल्टीपल या लंबे टाइम तक यूज करने पे काफी रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि हो सकता है आपको दूसरी बीमारियां डेवलप होने के चांसेस हो। सो आई डोंट थिंक यू शुड यूज दैट रेगुलरली, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कभी कभार यूज किया तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हर चीज में शुगर फ्री डाल दे, हलवा भी खाना है तो भी शुगर फ्री, चाय खाना है तो भी शुगर फ्री। सो नो, डोंट डू दैट, यूज इट ओकेशनली। डॉक्टर, विटामिन डी का इनटेक कितना, इसको कुछ रखना है कोविड में या उसका क्या? Okay, so vitamin D intake is also very important in COVID. अब vitamin D के जो medicines आती है, those come in either sachet forms, those are either powder form or it comes in capsule form like a jelly gelatin जैसा सा आता है. That has to be taken once a week and continue till 8 weeks. Usually recommended value ये रहता है. बट अगेन अगर विटामिन डी का टेस्ट करवाया है वो बहुत ज्यादा कम है रेंज से, तो काफी बार इंजेक्शंस भी एडवाइस की जाते हैं, जो कि आप जैसे वीकली इंजेक्शंस लगा ले। और अगर इंजेक्शंस नहीं लगाने हैं एंड यू जस्ट वांट टू सप्लीमेंट योरसेल्फ, तो व्हाट यू कैन डू इज कीप दिस मेडिसिन वीकली फॉर 8 weeks which is 2 months एंड देन स्टॉप इट, और उसके बाद एक बार वैल्यू चेक करवा ले। अगर वैल्यू में डिस्टर्बेंस है तो आगे लेने की नीड है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, या मैम, जैसे आपने होम्योपैथिक में बताया कि बूस्ट अप करने के लिए मेडिसिन आती हैं, तो मैम क्या आप उसका नेम मेंशन कर सकती हैं क्या? जी, जैसे मैंने ये भी बताया कि बूस्ट अप करने की तो मेडिसिन आती है, बट अगेन ये बहुत सारी मेडिसिन आती है। मतलब एक दवाई नहीं है ऐसी जो कि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करे, ऐसी मल्टीपल मेडिसिन है। दैट विल अगेन डिपेंड कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है, आपको ऑलरेडी समझो कोई एलर्जीज है क्या, अस्थमा की हिस्ट्री रही थी क्या, या आपका एज क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो आप सिर्फ अपनी ये जो सिम्टम्स है, बेसिक जो सिम्टम्स है, वो हमसे बता दीजिए एंड अकॉर्डिंगली वी विल एडवाइज यू ऑन द सेम। सो मेडिसिन आर अवेलेबल, बट प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन दैट वे ओनली। एक बार अपने सिम्टम्स बता दो और उसके अकॉर्डिंग वी कैन गिव यू द मेडिसिन। ओके मैम, थैंक यू। जी, या okay, so I think I've answered everybody's question here, related to COVID, related to homeopathy also, and related to vaccination also. And it was really nice. It was really a very good session today. अगर आपको किसी को भी कोई क्वेरी हो या स्टिल कुछ अपने कोई पॉइंट्स डिस्कस करने हो, you can note down the number given on the screen or contact us whenever you require, and we will definitely try to help you as to the best of our self. So I think still if you have any question, I can wait for 2 more minutes and then we can wind up with the session. Very useful session, ma'am. Yeah. Very useful session. Thank you. अमिता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अच्छा सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया। Then we can wind up with the session. Thank you, doctor. जी, thank you so much for attending today. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. जी, Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Dr. Anamika, for this very informative session. Thank you, doctor. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Rati ma'am. Thank you, ma'am. बबीता मैम, आप हैं उस पे सेशन में? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम। हाँ, मैं बोल रही हूँ मैम। क्या मैम?